A very good afternoon, class 10th. So today we are going to do the second. We are going to record the second lecture of chapter quadratic equations, and in this video we are going to do the most important topic, which we have done earlier also, the factorization or finding the solution of any quadratic equation using factorization. So guys, the factorization means, if you remember the another name you have done in 8 as well as 9, that is called as splitting the middle term. So this is the technique we are going to use for factorizing our quadratic equation and finding the solution. तो बेटा फिर से मैं रिपीट करूंगा. Solution means if they use the word root, 0, value of x, which makes the function equal to 0, and solution. So सबका मतलब एक है, ठीक है. So whenever they say find the root of this quadratic equation, find the solution of this quadratic equation, find the value of x, so sub means you have to solve this particular quadratic equation. So you all know splitting the middle term. हमें हर बार जो, if you remember, the quadratic equation is of the type ax square plus bx plus c is equal to 0. तो हमें इस bx को स्प्लिट करना हमेशा मिडिल टर्म पर. ओके, सो आई एम नॉट स्पेंडिंग मोर टाइम. इफ यू वांट द more detail of splitting the middle term, you can go to the video made for class 9th in the chapter polynomials, and there you will find the more detail about how to apply splitting the middle term. So I'm straight away going ahead with the questions. So the sum over here, you all know that sum is always what? The coefficient of x. तो b होता है और प्रोडक्ट होता है a into c. तो मैं यहाँ पे अब सम डायरेक्टली लिख रहा हूँ. सम इज b की वैल्यू है -1 एंड प्रोडक्ट इज a into c. 6 into -2, that is -12. So we need to find two such numbers जिनकी सम जो हो -1 हो और प्रोडक्ट जो हो 12 हो. एंड इफ प्रोडक्ट इज नेगेटिव, याद रखनी है चीज, either one of the number will be negative. तो मैं लिख सकता हूं -4 plus 3. -4 plus 3 होता है -1 और -4 into 3 होता है -12. तो यहां से एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर सम नेगेटिव है तो बड़े वाला वैल्यू डिजिट्स में जो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव होगा और छोटा नंबर पॉजिटिव होगा. इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्प्लिट दिस 6x स्क्वायर. तो ये दो नंबर हमें स्प्लिटिंग में हेल्प करते हैं. -4x plus 3x -2 is equal to 0. तो अब नोटिस कीजिए -x किसमें स्प्लिट हो गया? -4x और 3x में. नाउ another next step is what is the common between the first two terms. तो फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन है 2 और x. तो आंसर क्या आया? 3x बचा और -2. और इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है? इन दो टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं लिखूंगा 1 तो हर किसी में कॉमन है, तो 3x -2. एंड माइंड माय वर्ड्स, आपको अपने आप क्वेश्चन करते करते क्लियर हो चुका है वेदर अवर आंसर इज करेक्ट और नॉट. हमेशा ये दो टर्म सेम आनी चाहिए. सो दिस विल, इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में क्या कॉमन है? 3x -2 कॉमन है. तो लेट्स टेक इट आउटसाइड और बचा के अंदर 2x plus 1. सो इज इक्वल टू 0. सो 3x -2. अब मैंने क्या कर दिया? मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर्स में स्प्लिट कर दिया. सो अब कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है? कि दोनों में से एक 0 हो. तो हम कैसे लिखते हैं? ईदर 3x -2 is equal to 0 और 2x plus 1 is equal to 0. सो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं. 3x is equal to 2, so x comes out to be 2/3. So one value of x, and 2x is equals to -1, so x comes out to be -1/2. We have done the same in polynomials also, you all know that. So वहां पे हम we further do the checking of or verification of the relationship between the roots as well as the coefficients. तो वही same topic है. तो but in this chapter we'll study more typical questions out of this. Okay, so another question. So सबसे पहले let's take the LCM. Let's make it proper better quadratic equation. तो it becomes 16x square -x. अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा इस पे. 0 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही बन गया. तो 16x square -x plus 1
and sum comes out to be -1 and product comes out to be 16 into 1 is 16. तो कोई भी दो नंबर्स का सम जिनका प्रोडक्ट 16 आ जाए और सम आ जाए, सॉरी इट इज 8x, एलसीएम लिया तो इट इज 8x, माय मिस्टेक. सो प्रोडक्ट इज 16 एंड सम इज -8. ओके, सो -4 होता है -8 and -4 into -4 is 16. So let's do it. 16x square minus 4x plus 1 is equal to 0. इन दोनों में 4x कॉमन, 4x minus 1, इन दोनों में -1 कॉमन, तो 4x minus 1. So it becomes 4x minus 1 into 4x minus 1 is equal to 0. तो either अब दोनों सेम है तो याद रखो we have also know that quadratic equation can have same roots. तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 0 पुट करके 1/4 और यहां से क्या आ गई 1/4. तो हमेशा याद रखो x की वैल्यूज दो आएंगी, चाहे सेम भी आ जाए आप उसे दो बार ही रिप्रेजेंट करोगे. दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. सो लेट मी क्रॉस चेक द आंसर. यस इट इज 1/4 and 1/4. So another question and very important which includes the root also. So sum कितनी है 2√2 and product is -6. So we need to understand or find two such number. और याद रखो बेटा, अगर सम में अंदर रूट आ जाती है तो हमारा दो किसी रूट्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा. तो कैन आई राइट, इफ यू सी 6 के फैक्टर्स देखो क्या होंगे, 6 के फैक्टर्स होंगे 3 and 2 और 2 के आगे में तो √2 तो चाहिए, तो 2 के अंदर √2 है. तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, आई वॉन्ट 3√2 माइनस √2 आ गया मेरे पास 2√2 एंड 3√2 इंटू √2. ओके, और माइनस है तो -√2 माइनस √2 इंटू √2 2 3 6 तो -6. सो दिस कम्स डाउन टू बी x² प्लस 3√2x माइनस √2x -6. तो ये देखिए स्प्लिटिंग हो गई. सो इन दोनों में x कॉमन, x प्लस 3√2 माइनस √2 कॉमन, सो x प्लस 3√2. अब आपको ये कैसे है, रूट इंटू √2 2 3 6 तो 6 बन गया. ओके, सो दिस लीड्स टू x माइनस √2 इंटू x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0. सो इधर दिस इज इक्वल टू 0. अगर इसको 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई बेटा √2 और इसको पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -3√2. तो ये आपको, क्योंकि ये चीज हम पूरी 9th में डिस्क्राइब करते हैं, इधर दिस इज इक्वल टू 0 करना चाहिए, एग्जाम में भी आप करो, बट व्हेन यू प्रैक्टिस इट जस्ट फाइंड इट आउट. ओके, मन में इसको 0 पुट किया तो ये √2 उधर चला गया, इसको 0 पुट किया तो ये -3√2 बन गया. क्लियर? सो स्प्लिटिंग सम है हमारे पास 5 एंड प्रोडक्ट इज 4√3 इंटू -2√3. देखिए क्या बनता है, √3 3 2 6 6 4 24 एंड नेगेटिव. और प्रोडक्ट नेगेटिव है, सम पॉजिटिव है, मींस बड़ी वैल्यू पॉजिटिव और छोटी वैल्यू नेगेटिव है. सो 8 - 3 बन गया 5 और 8 इंटू -3 बना -24. ओके, सो लेट्स स्प्लिट इट. 4√3x² प्लस 8x - 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0. ये देखिए ना 5 दो में स्प्लिट हो गया. तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और x कॉमन है, तो बचा √3x प्लस 2. इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 3 के अंदर √3 छिपा हुआ है तो -√3 कॉमन आ गया, √3x प्लस 2. सो दिस कम्स आउट टू बी 4x माइनस √3 इंटू √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो या तो ये 0 है या तो ये 0 है. तो आई एम स्ट्रिक्टली राइटिंग डाउन x इज इक्वल टू, ये उधर चला गया √3 बना और 4 मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड बना, कॉमा यहां से आया -2/√3. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है ना, कोई इसमें वो नहीं है. इसको 0 पुट किया तो ये बना, इसको 0 पुट किया तो ये बना. ओके, अनदर वन मोर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब इसमें क्या है, इन्होंने कंफ्यूज किया है, क्योंकि आप सोचोगे सम ये है प्रोडक्ट ये है. तो सम ऑलरेडी अगर देखो √2 + 1 है, √2 1 के साथ ऐड नहीं हो सकता, दैट इज इरेशनल नंबर, दैट इज अ रैशनल नंबर. और प्रोडक्ट है √2, तो हम क्या लिखेंगे, √2 इंटू 1 कर दो तो √2 आता है और √2 + 1 कर दो तो √2 + 1 आता है. तो किया गया
उन्होंने पहले ही स्प्लिट करके दिया हुआ, सो कंफ्यूज कर रहे थे, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है. वी आर नॉट रिक्वायरिंग दिस टू बी डन. सो एक्स स्क्वायर माइनस, लेट्स मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. तो यही कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि करना क्या है. इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स माइनस रूट 2 प्लस इन दोनों में क्या कुछ नहीं तो 1 कॉमन है, एक्स प्लस रूट 2. ओके ओके ओके, वी आर मिस्टेकन समवेयर. एक्स ओके ओके बेटा, यहाँ पे माइनस आना, बाहर माइनस साइन था, तो -1 कॉमन करो तो बना x माइनस रूट 2. सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस रूट 2. क्लियर है ना, यहां से x माइनस रूट 2 निकला, x और -1 यहां आ गया, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 1 और यहां से आगे बेटा रूट 2 एंड दैट इज माय आंसर. इज इट क्लियर? Okay students, very important type of questions and this we have not done in the past. So let's form the equations. So सबसे पहले अभी तक ये quadratic equation ही नहीं है, तो first thing I need to make it, I need to make this equation as a quadratic equation. So let's make it. So यहाँ पे पहले तो LCM बनाए, तो ये क्या बना 16x square minus 10 is equals to 27. So ये x जो है 27 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. So 16x square minus 10 is equals to 27x and 16x square minus 27x minus 10 is equal to 0. So मेरी सम कितनी आ रही है, यहाँ पे सम आ रही है -27 एंड प्रोडक्ट आ रही है 16 into 10 is -16. अब देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है और सम नेगेटिव है, मींस बड़ा वाला टर्म जो होगी नेगेटिव होगी, तो 160 प्रोडक्ट आनी चाहिए. 28 से 160 होता है, नहीं बना तो 27 बन रहे. ओके तो 27 भी आना चाहिए एंड वी नीड टू थिंक ऑफ द फैक्टर्स. व्हाट कैन बी द प्रोबेबल फैक्टर्स ऑफ 27 बने 15 into 12 करें, 15 into 12 होता है 180, तो ये भी गलत है. सो कैन आई से -32 plus 5 is -27 and -32 into 5 is equal to -160. So factorization हो गई. 16x square minus 32x plus 5x minus 10 is equal to 0. So what is common in these two? 16x common. So x minus 2 और इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है and x minus 2. So 16x plus 5 into x minus 2 is equal to 0. So यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -5/16 और यहां से वैल्यू आ गई 2 एंड दैट इज माय आंसर. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो जीरोस निकलेंगे. सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं. तो एज अ बिकॉज स्टिल इट इज नॉट अ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, लेट्स टेक द एलसीएम. सो x plus 4 into x minus 7 और ये x minus 7 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ये x plus 4 इसके साथ, एंड बिकॉज बाहर माइनस है तो इट विल चेंज दी साइन, तो -x minus 4 इज इट क्लियर इज इक्वल टू 11/30. ठीक है, नाउ x x कैंसल, -7 minus 4 is -11 अपॉन x plus 4 into x minus 7 is equal to 11/30. तो दोनों तरफ 11 है, वो भी कट गए, 1 1 आ गए ऊपर, तो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. -30 is equal to x plus 4 into x minus 7. So -30 is equals to x square minus 7x plus 4x minus 28. So this leads to x square minus 3x minus 28 plus 30. 30 उधर जाके प्लस हो गया तो बना +2. So basic quadratic equation क्या है? So please understand from this complex question to the basic quadratic equation. तो यहां पे अगर मैं देखूं सम कितनी है, सम है -3 और प्रोडक्ट है 2. सो प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव हो और सम नेगेटिव हो तो दोनों टर्म्स नेगेटिव होती है. तो -2 -1 बना -3 और -2 into -1 बना +2. सो x square minus 2x minus x plus 2 is equal to 0. इन दोनों में x कॉमन, x minus 2, इन दोनों में -1 कॉमन तो x minus 2. So x minus 2 into x minus 1 is equal to 0. तो x की वैल्यूज क्या आ गया बेटा 2, 1. क्लियर? क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
Okay students, another very two important questions, quite important. Up 2x upon x minus 4 plus 2x minus 5 upon x minus 3 is equal to this. So let's make it a quadratic. अब यहाँ नोटिस करो x not equal to 3 and 4 है, तो वो इसलिए है कि अगर यहाँ 3 आ जाए तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, which makes it not defined. Similarly यहाँ 4 आ जाए, तो ये इसके लिए कि that x cannot be equal to 3 and 4. ठीक है, so let's solve it. Let's take LCM. X minus 4 into x minus 3. This gets multiplied with this. So 2x into x is 2x square. 2x into 3 is minus 6x. So similarly over here, 2x into x is 2x square. X into minus 5 is minus 5x. Now minus 4 into minus 2 is minus 8x. And minus 4 into minus 5 is plus 20. So this comes out to be 25 upon 3. So 2x square plus 2x square is 4x square. Minus 6x minus 8x minus 14. Minus 14 minus 5 minus 19x. And the leftover is 20. Upon x square. और इसी स्टेप पे कर देंगे. x square minus 3x minus 4x बन गया minus 7x plus 12 is equals to 25 by 3. Let's cross multiply it. 4 3s are 12x square minus 57x plus 60 is equals to 25x square minus 175x plus 300. Okay, 25 into 12. Yes. So bring it to the other side. 25x square minus 12x square is 13x square. Minus 175 plus 57. So minus 120x. No, 118x. And plus 240. So this comes out to be 0. So now we need to factorize this. तो sum है मेरे पास. Sum है minus 118 और product है 240 into 13. 240, 2400 plus 720. 2400 plus 720 gives you 3120. So प्रोडक्ट है 3120. तो सोचो प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम नेगेटिव है, तो दैट मींस दोनों एलिमेंट्स नेगेटिव होने वाले हैं, तभी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी. सो 3120 के फैक्टर ही बनाने पड़ेंगे. 3120 के 21560, 2780, 2390, okay, 3130, 265, 5, 13 सर. तो अब प्रोडक्ट तो आ रहा है, देखना है कि 118 कौन बनाएगा इसमें से. 2 2 4, 4 2 8, दोनों इवन होंगे तो बनेगा 118, या एक और दोनों और होंगे 3 and 5 8. 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 240 plus 13. Sorry, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 240 minus 13 तो नहीं आएगा. ठीक है, तो एक 2 ला के देखते हैं. 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 2 48 and 65 और 48. 8 5 13, 1 10, 6 4 10 1. So we are near to it. तो इसके आसपास ही कोई वैल्यू घूमनी चाहिए. 2 2 4, 4 2 8, 8 8 5 40, 13 2 26 हो गया सर. 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, एक तो 40 आ गया और दूसरा है 13 2 13 3 39, 39 78 हो गया बेटा. सो 118. तो याद कर लो, कभी भी सम नहीं सॉल्व हुए तो फैक्टर्स बना के एडिशन चेक करिए, प्रॉपर कॉम्बिनेशन लगा देगा तो क्या बन सकते हैं. तो ये बना 13x स्क्वायर माइनस 78x माइनस 40x प्लस 240 इज इक्वल टू 0. सो इन दोनों में 13 कॉमन है, 13x x माइनस 6 माइनस 40 कॉमन है, x माइनस 6.
So 13x minus 40 and x minus 6 is equal to 0. So x की values आ गई 40 by 13, comma 6. So this is the answer. Is that clear? Now next, this is very important question. बहुत बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं. अगेन यहाँ पे भी अगर x को 5 पुट करूंगा तो 0 बन जाएगा, माइनस 5 पुट करूँ तो 0 बन जाएगा, which makes it not defined. So let's take the LCM. a minus b into a plus b, नीचे क्या आ गया a square minus b square और ऊपर बना a plus b का होल स्क्वायर, a square plus b square plus 2ab और a minus b का होल स्क्वायर, बाहर माइनस है तो a square b square माइनस ने सारे साइन चेंज कर दिए तो प्लस 2ab इज इक्वल टू 4 3 से 12, 12 3 15 by 4. ओके, सो 25x square कट गए. So 20x over 25 minus x square is equal to 15 by 4. So cross multiply कर दें. 80x is equal to 25 into 15, 250 and 125, 375 minus 15x square. So bring it to other side. 15x square plus 80x minus 375 is equal to 0. तो इन सब में 5 कॉमन है, 5 निकाल दो बाहर. So 3x square plus 16x minus 5 7 35 25 is equal to 0. So this leads my question to sum of 16 and product of 3 into 75 is 225. Okay, तो प्रोडक्ट 225 एंड नेगेटिव. तो प्रोडक्ट नेगेटिव और सम पॉजिटिव, मतलब एक बड़ी वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू, एक नेगेटिव और पॉजिटिव वाला बड़ा. ठीक है, सो 225 के फैक्टर्स ही बना लेते हैं. 5 4 5 5 5 9 so 9 5 45 25 and 9 आ गया 16. तो क्लियर कट 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 25x माइनस 9x. तो मैंने आगे लिख दिया, कोई फर्क नहीं है, तब भी एक ही बात है. सो इन दोनों में 3x कॉमन, x माइनस 3, इन दोनों में 25 कॉमन, x माइनस 3. सो 3x प्लस 25 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यूज क्या आ गई, माइनस 25/3 कॉमा 3. सो दीज आर आंसर्स. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई विल बी शेयरिंग, I have already shared the whole assignment, and today your homework is from question number 8 till question number 39. Okay, question number 8 till question number 39, and except question number 13 and 14, दो क्वेश्चन नहीं करने, and rest all is your